स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आर्टिकल 370 की मनसूखी का मामला सुप्रीम कोर्ट में दूसरे रोज की समाअत शुरू। मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू। 370 की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तें। सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश कर रहे हैं अपना मौक़िफ़। Gives power to Parliament to enact law? No. It limits the power of Parliament to enact law to a certain extent. But I was trying to explain what Yes. you not put to me. Please allow me. But Yes. what I was trying to say was that here, what the clause says is that where the lists in the instrument of accession, right? Parliament may make a law, but that will be in consultation. It's a double limitation, Mr. Sibbal. See, the first limitation is, the Chief mentioned, Well, let's- power of Parliament to make laws for the state shall be limited to. Yes. What is it limited to? To matters in the union list Yes. and concurrent list. So, first part is matters in union and concurrent. Correct, correct. But second qualification, which in consultation with the government of state, there also you are right, to that extent you are right, it is in consultation with government of state, are declared by President to correspond to matters specified in the instrument of accession, Correct. governing the accession of the state. Correct. So such parts of union list and concurrent list, which form a part of the instrument of accession, Correct. because everything else doesn't form a part of the instrument of Correct. accession. The whole list doesn't. Right. To that extent, Parliament can enact law. Parliament is limited to enacting laws in respect thereof in consultation with the government. Absolutely. Right. That's No, how I read it. not, that's what I'm saying too. But they are not, at that moment, the law is not made. They are only saying the contours under which Parliament will enact a law. The contours with respect to instrument of accession are those four items: communications, defense, external affairs, and ancillary, which I showed to your lordship the schedule. When it comes to B2, the contours again of the items in the concurrent list over Parliament may make laws. Again, it doesn't say that law is made. It only delineates the contours. Therefore, I'm going to now distinguish it from D, Malad. That's how I'm trying. Let's come to D. How would you? I'm just coming. Yeah. Then you come to see the provisions of 1 and of this article shall apply in relation to that state. That's not covered. That's not covered. Right. So that's Millard's. 1 is integration into India, and Millard's, the other is Article 370. Now come to D. Such of the other provisions of this constitution. Now we are not talking about lists. Now we are not talking about lists. We're talking about preamble. We're talking about 356. We are talking about fundamental rights. Each of those orders require the concurrence of the state. I'll show that to your lordship. Here it is such of the other provisions of this constitution. 371B doesn't talk of any other provisions of this constitution. It talks of the instrument of accession and the concurrent list, the contours of the power. When you come to other provisions of the constitution, these may be made applicable. That's why the order. Now let's read it further. Such of the other provisions of this constitution shall apply in relation to the state, subject to such exceptions and modifications as the president may order set specify, not referred to 371B. There's no order, no question of order there. It's only the contour of the power. Now read, provided that no such order, that is no such order relating to D, which means provisions of the Constitution of India to apply to Jammu and Kashmir. No such order which relates to matters specified in the instrument of accession referred to in paragraph 1 of clause shall be issued. Kindly note the word issued. That's the difference between 371B and 371D. Because no orders are issued under 371B. That's the power to make law. That's only the contour of the power. Your lordship asked जम्मू me the कश्मीर से दफा 370 खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की समाअत शुरू हो गई है। 370 हटाने के खिलाफ दायर कुछ अर्जियों की पैरवी करने वाले सीनियर वकील कपिल सिब्बल आज भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। कपिल सिब्बल को आज दोपहर तक का वक्त दिया गया है।
चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली 5 रुकनी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर फैसला तो बाद में आएगा, लेकिन इससे पहले इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और अपोजिशन जमातों ने इस मुद्दे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सभी पार्टियां इस मुद्दे को अपने हक में भुनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। पहले रोज दफा 370 की मनसूखी पर अपना मुद्दा या अपनी दलील रखते हुए कपिल सिब्बल का कहना था कि हम यहां इस बुनियाद पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंज़िमाम था और हमेशा रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आईन हिंद को नाफिज करने के अहकामात सादिर होते रहे हैं। दफा 370 के हक को छीनने का कोई जवाज नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वकला में से एक मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा था कि हमारा मानना है कि आईन साज असेंबली के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, जबकि पार्लियामेंट के पास नहीं है। मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गुलाम नबी आजाद की कोई दरख्वास्त नहीं है, यानी DPAP के जो सदर हैं गुलाम नबी आजाद, उनकी कोई दरख्वास्त नहीं है और कपिल सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उस वक्त उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों ही घर में नजरबंद थे, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP अकबर लोन और MP हसनैन मसूदी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। कपिल सिब्बल अकबर लोन की दरख्वास्त पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मुजफ्फर इकबाल खान। किस तरीके से किस चीजें देख रहे हैं और किस जहत में आगे बढ़ रहे हैं? कपिल सिब्बल साहब ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल उन्होंने पूरे कंप्लीट अभी नहीं किए हैं आर्गूमेंट। वो एक आध दिन और लग सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं गोपाल सुब्रमण्यम साहब, वो स्टार्ट करेंगे। जो आर्डर हमने दिया हुआ है, नोडल जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है कोर्ट की तरफ से ही, तो उम्मीद है आज कल तो बहुत अच्छे माहौल में आर्गूमेंट चलते रहे। आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में तारीख में आफ्टर केशानंदा भारती एंड आफ्टर SR बोमई ये सबसे बड़ा मामला है। अगर देखें तो जिस तरीके का जो बुनियादी बात है, दस्तूर साज असेंबली, पार्लियामेंट, ये इसके इर्द गिर्द जो आर्गूमेंट हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको किस तरीके से तय करने की जरूरत है? देखिए, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह लेता है। जो हमारा मानना है एज लॉयर की अपनी दलील है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। फाइनली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लेना है। हमारा यह है कि जो आइन साज असेंबली है उसकी पावर्स पार्लियामेंट इख्तियार नहीं कर सकती। आइन साज असेंबली की पावर्स अनलिमिटेड हैं, पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड हैं। तो अब ये देखते हैं इसको कैसे लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है। एक खबर ये भी चलनी शुरू हुई कि कपिल सिब्बल साहब जो पहले खबर आ रही थी कि NC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब की यहाँ कोई पिटीशन है नहीं। शायद आपको याद होगा कि जिस वक्त ये पिटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आर्गूमेंट जिसमें कपिल सिब्बल कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की पिटीशन है। उस वक्त हमारे जो पार्टी के दोनों लीडर हैं फारूक साहब और उमर साहब, वो अरेस्ट थे, वो एफिडेविट फाइल करने नहीं आ सके थे। उस वजह से हमारी पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं अकबर लोन साहब और ऑनरेबल जस्टिस मसूदी साहब, उन्होंने अपने नाम पर ये पिटीशन, ये बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन है जिसको कपिल सिब्बल साहब आर्गू कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि आजाद साहब की तरफ से है, तो आजाद साहब की ना तो यहाँ कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन है और ना ही कोई पिटीशन है। सिब्बल साहब ने जो कल आर्गूमेंट स्टार्ट किए वो अकबर लॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों MP जो हैं वो पार्टी हैं। आज की जो पूरी बहस होने वाली है, जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या बुनियादी तौर पर इसको आप देखते हैं कि कितनी लंबी चलने वाली है? लंबी तो ये चलेगी, अब किस तरह बढ़ेगी वो तो अभी एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है कि भाई ऑनरेबल कोर्ट्स की अपनी क्वेरीज हैं, लॉयर्स की जो हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो किस सिमत में जाएगी ये तो नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन आर्गूमेंट तो अभी चलेंगे, अभी टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुजफ्फर इकबाल खान जो हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर 2 बातें कही हैं कि आइन साज असेंबली का जो आर्गूमेंट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि आइन साज असेंबली की जो इख्तियारात हैं, उसके जो हदूद हैं वो लामहदूद हैं, जबकि पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं
वो महदूद होते हैं। दूसरा, इन्होंने बड़ी बात कही कि गुलाम नबी आजाद को कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। Constitutional practice may seem to support what Mr. Sibal is saying. One is that D refers to the fact that other provisions of the Constitution may apply such Other than 1 and other than 1 and 2. 1 and Such of the other provisions of this Constitution shall apply in relation to that state, subject to such exceptions and modifications as the President may by order specify. In other words, if you are making exceptions or modifications, that's one construction. That if the President is making exceptions or modifications, then if it relates to a B1 subject, then you require consultation with the state. If it relates to something other than a B1 subject, you require consultation of concurrence of the state. All right? So it is only where you are making exceptions or modifications in the Constitution that it requires either consultation or concurrence. The other interpretation is that even if you are not और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। यह घटना बोलबा के लेटाबेड़ा बरटोला में हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के टटीबा गांव में दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की महिला ने पीट पीटकर हत्या कर दी। दरअसल महिला का बेटा बीमार था, वो दवा लेने के लिए रूड़िया कैतवार के घर गई थी। रांची पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया। इनके नाम है राजेश मुंडा, मंगलदीप कुमार और ब्रजकिशोर गंजू। दरअसल ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का को ये तीनों आरोपी कोयले की सप्लाई किया करते थे। झारखंड विधानसभा के सीएम कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द उचित ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। त्राल के नारस्तान, जिसबल और वांचीनार इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से तुगयानी आ गई है। इसकी वजह से राब्ता सड़कों, फसलों और कई मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इंतजामिया से इलाकों का दौरा करने और नुकसान का तखमीना लगाने की मांग की है। गुजारिश करूँगा हूँ इस जिसबल बस्ती को बोलूँ वाला को भी मेहरबानी कर गया एजेंडल DC साहब नामे और जी जो तहसीलदार नामे वो कुआं निकलो रास्ता हमारा छोटा से रास्ता था वो भी गिर गया। वो तमाम जहाँ नाले का आ गया और अल्लाह से तूफान आ गया। तूफान इसको बोलते हैं तूफान। मगर हमारा मकान देखो जाकर वो भी गिरने लगा है, तैयारी गिरने से है। और मस्जिद शरीफ है, उसका मस्जिद शरीफ से भी और बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी गुजारिश है मेहरबानी करके कोई टीम भेजो, यहाँ देखेगा रास्ते का क्या हाल हो गया। तूफान आ गया, ऊपर से हमारा जो रास्ता था वो सब खत्म हो गया और जमीन सब खत्म हो गई। मकानों को भी बहुत खतरा, इस वक्त बहुत नुकसान हो गया मकानों को भी। DC साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं और ADC साहब से यहाँ पे अपनी टीम को भेजें, यहाँ पे कुछ मदद की जरूरत है रास्ते को, इसको मरम्मत करके ठीक करना चाहिए। वादी के बारूद सामाजिक कारकुन सैयद अली असगर रिजवी और इनके हमरा मुख्तलिफ अदाकार, नौजवान और मागाम पुलिस मंशियात के खात्मे, खासकर खुदरू यानी अपने आप उगने वाले भांग को तबाह करने के लिए सामने आए हैं। अली असगर रिजवी की सरबराही में रजाकारों ने पुलिस के साथ मिलकर तमाम भंग को तबाह करने का बीड़ा उठाया। बडगाम के मागाम में इन्होंने कई किलोमीटर पर फैली हुई भंग को तबाह किया, साथ ही इसे जलाया भी। इस मौके पर SDPO मागाम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मुहिम को अंजाम देने पर नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। अली असगर रिजवी ने कहा कि वादी कश्मीर में भंग से चरस हासिल करने से हालात इंतहाई कशीदा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हर एक को सामने आकर मंशियात, खासकर भंग को जड़ से खत्म करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए।
मकामी लोगों और पुलिस ने अली असगर रिजवी के इस काम की सताइश की। हम काफ़ी टाइम से ऐसे ड्राइव्स जो है करते आ रहे हैं। पिछले साल भी हमने यहाँ पे ये जो भंग बहुत सारी आई थी उसको हटाया था। मेरे साथ करीबन अभी 22-23 लड़के खड़े हैं। तो हमारी एक अपनी टीम है खिदमतगार के नाम से। हम साल में ऐसे सर्कल में करते रहते हैं एंटी ड्रग एक्टिविटीज़ वगैरह। ये लड़के मेरा साथ देते हैं उसमें। रोज़ लड़के नए नए जुड़ रहे हैं। जितना ये टीम बड़ा बनेगा उतना अच्छा है। मैं सारे लड़कों को सजेस्ट करता हूँ कि वो अच्छे कामों के लिए मेरे साथ जुड़े और अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें। इससे पहले भी हमने पिछले साल ये की थी, आज हमने दूसरी बार ये ड्राइव की है। तो हमारा इसका मेन मकसद यही था कि हम जो हमारे यूथ हैं हम उनको बचाए, वो ड्रग्स और बाकी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। हमने बहुत सारी जगहों पर ये काम किया था और आज हम मागाम आए थे, हमने ये काम किया है। तो हम शुक्रगुजार हैं हमारे जो खिदमतगार कमेटी है और हमारे जो जे&के पुलिस मागाम के DSP साहब अख्तर साहब के शुक्रगुजार हैं। जो बहुत सारी ड्रग एक्टिविटी जो हमारे यहाँ पे हो रही है मागाम में, हमने उसमें भी हिस्सा लिया है। जो हमने देखा कि इस पर कोई भी अभी इस पर बात नहीं चल रही थी, तो हमारी जो टीम है खिदमतगार, हमने सोचा कि हम इसको खुद करेंगे। और इसमें से सबसे जो मेन रोल था, हमारी जो टीम है खिदमतगार और हमारी जो पुलिस यहाँ पे है DSP साहब है, वो पहले हमारे साथ पहले टाइम से हमारे साथ यहाँ पे खड़ा रहे और हमने लगभग मैक्सिमम हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अब कोशिश यही की जा रही है कि कश्मीर के अंदर जो मंशियात की लत फैली हुई है उसको किस तरह ख़त्म किया जाए और जो नौजवान इसमें मुलवस पाए जा रहे हैं उनको किस तरह राह रास्त पर लाया जाए, उन्हें किस तरह एक अच्छे ट्रैक पर लाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। और इसी तरह जिस तरह यहाँ पे मागाम में सईद अली रिजवी और उसके साथ वॉलंटियरली जो नौजवान जुड़े हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जिस तरह जुड़े हैं, और इसी तरह हर जगह नौजवानों को सामने आना चाहे और वॉलंटियरली ये जो खुदरो भंग है उसको ख़त्म करना चाहे ताकि नौजवान जो है वो इस जो मंशियात की लत है उससे उन्हें बचाया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और सब जिला त्राल में म्युनिसिपल कमेटी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका तौर पर पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम चलाई। इस दौरान टीम ने त्राल बाजार से काफी मकदार में पॉलीथीन और प्लास्टिक जब्त किया। इस मौके पर मुलाजमीन ने लोगों को पॉलीथीन के मनफी असरात से मुतालिक जानकारी भी फराहम की। जोरदार मुहिम चलाई कस्बे त्राल में। लोगों से यही हम गुजारिश करते हैं आप लोग किसी भी सूरत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें। साथ ही साथ हमने वहाँ पर मौके पर ही दुकानदारों से कम 6 किलो के मकदार में पॉलीथीन बैग इस्तेमाल ज़ब्त किए हैं और साथ ही साथ उसके साथ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसका भी ज़ब्त किया, साथ मौके पर उसको ज़ाया किया। और दुकानदार से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल न करे और न करने दें, क्योंकि एक मुज़र चीज़ है। आज वहाँ पर एक ज़ोरदार मुहिम जारी रहती है जिससे हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एहलकार और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन बोर्ड के एहलकार भी साथ में, म्यूनसिपलिटी हमारे प्रेसिडेंट साहब भी था साथ, और पूरे गांव में पूरे कस्बे में हमने इसका आज एक ज़ोरदार मुहिम चलाई। इसलिए हम तमाम लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि वो इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि एक इंसानी जूं के लिए त्राल इलाके में फ्रूट मंडी न होने की वजह से अब मकामी सतह पर चंद नौजवानों ने सोपोर में कायम फ्रूट मंडी के एक ब्रांच का क़याम अमल में लाया है। इस सिलसिले में मंडी का इफ्तिताह सरकर्दा शहरी मोहम्मद अकबर भट्ट ने SHO त्राल मंजूर अहमद और समाजी कारकुन फारूक तराली की मौजूदगी में किया। इस मौके पर बताया गया कि सरकार को फ्रूट मंडी का क़याम करने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में गवर्नमेंट ने एक फ्रूट मंडी के क़याम के लिए लैंड आइडेंटिफाई की थी, मगर पिछले 6-7 सालों से गवर्नमेंट इस फ्रूट मंडी को फंक्शनल बनाने के लिए टोटली नाकाम हुई है, जिसका हमने बारहा गवर्नमेंट की नोटिस में ये बात लाई थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में हो रही है। एक फ्रूट मंडी का क़याम यहाँ लाजमी और ज़रूरी है, मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक इस फ्रूट मंडी को फंक्शनल नहीं बनाया गया, जबकि लैंड आइडेंटिफाई हुई है। इस सिलसिले में त्राल के कुछ तालीम याफ्ता नौजवानों ने आज एक फ्रूट कंपनी का यहाँ इफ्तिताह किया, जो फ्रूट कंपनी एक्चुअली सोपोर में काम करती है, सोपोर के फ्रूट मंडी में काम करती है। उनका एक सब फ्रूट ये ऑफिस
या मंडी कहेंगे हम, इसकी आज इफ्तिताह यहाँ हुई। लिए हम इस सोपोर की फ्रूट मंडी का शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ की नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव आज। और डाइट बांडीपुरा की जानिब से प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर और प्रिंसिपल डाइट बांडीपुरा अब्दुल मजीद डार की रहनुमाई में गुरेज जोन में असातिज़ा के लिए आउटरीच एक्सटेंशन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक असातिज़ा की महारतों और इल्म को बढ़ाना था। इस प्रोग्राम में 500 असातिज़ा ने हिस्सा लिया जो 5 मुख्तलिफ मराहिल में मुनक़िद किया गया। असातिज़ा को नई तालीमी पॉलिसी के अहम पहलुओं पर जामे तरबियत और आगाही फराहम की गई। पूरे प्रोग्राम के दौरान शुरका वर्कशॉप, मुहासों और प्रैक्टिकल सेशंस में मशगूल रहे जो इन्हें मौसर तदरीस सीखने के लिए ज़रूरी आलात और हिकमत अमली से आरास्ता करने के लिए तैयार किए गए थे। जिस तरीके से डाइट बांडीपुरा की जानब से 5 फेजेस का आउटरीच एक्सटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम गुरेज वैली में शुरू किया गया था, जिसकी सरबराही जो है हमारे डायनेमिक लीडर अब्दुल मजीद डार साहब वर्दी प्रिंसिपल डाइट बांडीपुरा कर रहे थे। और ये ट्रेनिंग जो है 5 फेजेस में हुई और मैं समझता हूँ शायद गुरेज की इतिहास में ये पहली बार ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है जिसमें 100% असातिज़ा को ट्रेन किया गया है, चाहे वो बख्तौर के असातिज़ा थे, PTL के असातिज़ा थे, दावर के असातिज़ा थे, बड़ूगाब और बड़ूगाब के असातिज़ा को यहाँ पे मौसर तरीके से ये ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें RP हजरात जो वहाँ से लाए गए थे उन्होंने बड़े ही दिलचस्पी के साथ उन्हें अपनी जान फशानी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।